प्रश्न है What is the message that Stephen Spender wants to give through the poem? Stephen Spender कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? And the answer is through this poem the poet gives the message of social injustice and class inequalities. इस कविता के माध्यम से कवि सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता के संदेश देते हैं। These are two different worlds. ये दो विभिन्न संसारों को व्यक्त करते हैं। The slum children have no interest in the world of rich, that is, art, culture and literature have no values for them. गंदी बस्ती के बच्चों को अमीरों वाली दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, जैसे कि कला, संस्कृति, साहित्य इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। They live in dark, narrow, cramped holes and ये अंधेरे, संकरे और तंग गलियों में रहते हैं। और lanes या कि तंग रास्तों पर। The poet says if gaps are not filled between two worlds, there cannot be any progress or development anywhere in the world. कवि कहता है कि यदि दोनों संसारों के बीच की खाई को नहीं भरा गया तो विश्व के किसी भी भाग में विकास और उन्नति नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the poet say about the poem Open-handed Map? कवि का खुले हाथ से दुनिया के नक्शे को अपनी इच्छा से घटाया बढ़ाया जाना ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? And the answer is the map has been called open-handed because it shows all the seas and lands we have in the world. खुले हाथ से दुनिया के नक्शे को अपनी इच्छा से घटाया बढ़ाया जाना ऐसा कहा गया है क्योंकि यह समुद्रों और जमीनों को दर्शाता है जिसे कि हम विश्व में पाते हैं। But the poet says that this world is not meant for the poor children. लेकिन कवि कहते हैं कि ये विश्व इन गरीब बच्चों के लिए नहीं है। Their world is limited to what they see from the windows of their classroom. उनके लिए उनका विश्व तो उनकी कक्षा की खिड़कियों से जो दिखता है वही है, उनकी दुनिया सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why does the poet say Shakespeare is wicked? कवि ने शेक्सपियर को बेकार क्यों कहा है? And the answer is actually the poet does not really mean to say that Shakespeare is wicked. वास्तव में कवि ने शेक्सपियर को बुरा नहीं कहा है। It means that a picture of Shakespeare's head is of no use in their class. कवि के कहने का मतलब है कि शेक्सपियर के सिर वाले चित्र उन लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। For them, Shakespeare holds no interest and serves no purpose to slum children. उन लोगों की शेक्सपियर के प्रति कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही उनका कोई उद्देश्य उससे पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the poet want the governor, the inspector and the visitor to do? कवि गवर्नर, निरीक्षक और आगंतुक लोगों से क्या चाहता है? And the answer is the poet wants these people to take steps by which the poor children can be helped. कवि चाहता है कि ये लोग ऐसे कदम उठाएं जिससे इन गरीब बच्चों की मदद हो सके। He wants the children to be taken out of the slums in which they are living. वे चाहता है कि ये गरीब बच्चे इन गंदी बस्तियों से बाहर निकलें जिसमें वे रह रहे हैं। He wants that they should be taken to those places where they can play and run about among the trees. वह चाहता है कि वे बाहर निकलकर पेड़ों के बीच खेलें और दौड़ें। They should also enjoy the life outside the room. और वे अपने कमरे से बाहर की दुनिया का भी आनंद लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है How does the poet describe the classroom walls? कवि ने कक्ष की दीवारों का वर्णन कैसे किया है? And the answer is the poet says that the walls of the classroom emit bad smell. कवि कहता है
कि कक्षा कक्ष की दीवारें बदबू देती हैं, बदबू मारती हैं। The walls bear the names of those who gave donations to build the classroom. दीवारों पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने कक्षा कक्ष को बनाने में चंदा दिया है। The walls bear some pictures. दीवारों पर कुछ चित्र टंगे हुए हैं। A big open map is also hanging on the wall. और एक बड़ा सा संसार का खुला नक्शा भी दीवार पर टंगा हुआ है। Read the extracts given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds the hair torn round their pallor. समुद्र की तूफानी लहरों से दूर इन बच्चों के उदास चेहरों पर बेतरतीब बाल बिखरे हुए हैं, जैसे कि बिना जड़ों की फालतू जंगली पौधों की तरह। The tall girl with her weighed down head. और वो लंबी सी लड़की अपने सिर को उदासी से नीचे झुकाए हुए है। The paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair. और वहां बैठा नाजुक पतला सा चूहे जैसी आंखों वाला लड़का जो कि अविकसित है और उसका कद भी छोटा है। Of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. और वह छोटे कद का टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है। वह अपनी डेस्क से अपना पाठ नहीं परंतु अपने पिता की गठान वाली बीमारी को दिखा रहा है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. और धुंधली सी कक्षा में पीछे की तरफ एक प्यारा सा एक युवा बैठा हुआ है जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. उसकी आंखों में सजीव सपने दिखाई देते हैं। वह नीरस और उबाऊ इस कक्षा से बाहर की तरफ खेले जाने वाले खेलों का सपना देखता है। वह गिलहरी के खेल के लिए बनाए गए पेड़ के खोखले तने में बनाए गए कमरे का सपना देखता है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। How are the children of this slum school look like? इस गंदी बस्तियों के स्कूल में बच्चे कैसे दिखाई देते हैं? And the answer is, the children of this slum school look pale. इस गंदी बस्ती के स्कूल में बच्चे उदास दिखाई दे रहे हैं। Their uncombed hair look like rootless wild herbs or plants. उनके बिखरे हुए बाल बिना जड़ों वाले जंगली पौधों की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेट डाउन हेड। बोझ से दबा हुआ सिर, इसकी व्याख्या करो। एंड द आंसर इज, द बर्डन ऑफ मिसफॉर्च्यून्स हैज मेड देम डिप्रेस एंड बेंट डाउन देयर हेड्स। दुर्भाग्य के बोझ से दबकर वे अवसादग्रस्त हो जाते हैं और उनका सिर नीचे झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द अनलकी हेयर एंड व्हाट इज ही रिसाइटिंग। अब दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी कौन है और वह क्या वर्णन कर रहा है? एंड द आंसर इज, द थिन बॉय हैविंग रेड्स आई विल इनहेरिट ट्विस्टेड बोन्स ऑफ हिज पेरेंट्स। वह दुबला पतला सा लड़का जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, वो अपने माता पिता की टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है। He is reciting how his father developed that naughty disease. वह यह दिखा रहा है कि उसके पिता की जो गांठ वाली बीमारी है उसको कैसे विकसित हुई, वो बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा व्हिच मीन द फॉलोइंग। इस पद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के अर्थ ढूंढकर लिखिए। फर्स्ट है ब्लोइंग स्ट्रांगली, ये पद्यांश में गस्टी नाम से दिया गया है। सेकेंड इज अनडेवलप्ड, तो यह है स्टंटेड। एंड थर्ड इज नॉट क्लियर या ब्राइट, तो उसे हम बोलते हैं डिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम वॉल? कक्षा कक्ष की दीवार की क्या स्थिति है? एंड द आंसर इज, द क्लासरूम वॉल इज पेंटेड विद क्रीम कलर बट इट एमिट्स फाउल स्मेल। कक्षा कक्ष की दीवार क्रीम रंग में पुती हुई है और उसमें से गंदी बदबू आ रही है। Now let's see the second stanza. On sour cream walls donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belt, flowery Tyrolese valley. स्कूल की अप्रिय क्रीम रंग की दीवारों पर चंदे द्वारा उगाई गई चीजें और शेक्सपियर के सिर की तस्वीरें टंगी हैं, लेकिन ये सभी स्कूल के बच्चों के लिए व्यर्थ हैं। दीवारों पर कुछ दूसरी तस्वीरें भी लगी हैं, जैसे कि बिना बादलों की सुबह या भोर, शिष्ट शिक्षण संस्थाओं के गुंबद सब शहरों के ऊपर दिखाई देते हैं। Open-handed map awarding the world its world, and yet for these children these windows, not this map their world. और ऑस्ट्रिया की टायरोल घाटी की ये संस्थाएं घंटियों और फूलों से भरी हैं। इस विश्व का मानचित्र खुले हाथों से तैयार किया गया है और इस संसार के लोगों को एक नया संसार भेंट किया जा रहा है, लेकिन गंदी बस्ती के इस स्कूल की कक्षा के इन बच्चों के लिए ये संसार उनका अपना नहीं है। उनको तो ये उनके कक्षा की खिड़कियां ही अपनी हैं। Where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words, जहाँ पर कि उनको अपना भविष्य अनिश्चितता के ब्रश से पोता हुआ दिखता है। वे अपने जीवन की तंग संकरी गलियों में घिर गए हैं। उनको एक धूसर नीले आकाश ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये सभी इस गंदी बस्ती के स्कूल की कक्षा के बच्चे इस तंगी और घुटन के शिकार हैं। नदियों, अंतरियों और सितारों का संसार उनसे बहुत ज्यादा दूर है। और अब प्रश्न देखते हैं, Where are donations and pictures of Shakespeare's head placed? चंदे की तस्वीरें और शेक्सपियर के सिर की तस्वीरें कहाँ पर टंगी हैं? And the answer is, all donations and the picture of Shakespeare's head placed on the sour, creamy wall. चंदे की तस्वीरें और शेक्सपियर के सिर की तस्वीरें उस असुहावनी क्रीम रंग की दीवारों पर टंगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Explain the slum children's world and the world which is not theirs. गंदी बस्ती के बच्चों की दुनिया का वर्णन कीजिए और उस दुनिया का भी जो कि उन गंदी बस्तियों का नहीं है। And the answer is, the world of the rich, of civilized dome, bells and flowers are not the world of these children. अमीरों की दुनिया, सभ्य शिक्षण संस्थाओं के गुंबद, घंटियों और फूलों से भरी हुई दुनिया इन बच्चों की नहीं है। Narrow lanes with foggy skies from the world of these children. और संकरी गलियां और कोहरे से आच्छादित आसमान ही इन बच्चों की दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Explain the future of these children. इन बच्चों के भविष्य के बारे में वर्णन करिए। And the answer is, the future of these children is uncertain and is lost somewhere in darkness. इन बच्चों का भविष्य अनिश्चित और अंधेरे में कहीं गुम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do they crave for? A narrow street or rivers and capes? ये बच्चे किस चीज के लिए तरसते हैं? एक संकरी सी सड़क या नदियां और अंतरिय? And the answer is, they crave for openness. वो खुलेपन के लिए तरसते हैं। They crave for rivers and capes and the starry sky. वे नदियों,
अंतरियों और सितारों वाले आसमान के लिए तरसते हैं। They didn't want to live in narrow and crowded streets. वे सकरी और भीड़-भाड़ वाली गलियों में जीना नहीं चाहते। Next is find words from the stanza. निम्न शब्दों के अर्थ पद्यांश में से लिखिए। पहला है unpleasant, अप्रिय, उसके लिए है सार, cloudy thick air, उसके लिए है fog, और distant के लिए है far. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए शेक्सपियर बेकार और खराब है। इस संसार का नक्शा भी उनके लिए एक बुरा उदाहरण है, एक खराब उदाहरण है। With ships and sun and love tempting them to steal, जो कि जहाजों, सूर्य की गर्मी और इंसानी प्यार से भरी यह दुनिया इनको चुराने के लिए ललचाती है। For lives that sly turn in their cramped holes from fog to endless night, और कोहरे से अनगिनत रातों तक, जीवन भर तक उनका जीवन चुपके से उन सकरी गलियों में छोटे-छोटे से घरों में आकर घिर जाता है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. और उनका जीवन जो है वो इन बच्चों की खालों में से हड्डियों के बाहर उनका शरीर झांक रहा है। ये कबाड़ के ढेर पर बैठे हुए हैं और ये पैबंद लगे शीशों से जड़े स्टील के चश्मे पहने ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए टुकड़े हों। और अब हम इस पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर देखते हैं। Why is Shakespeare described as wicked? शेक्सपियर को बेकार क्यों बताया गया है? And the answer is Shakespeare is described as wicked because he and his works are of no use for slum children. शेक्सपियर को बेकार व्यक्ति के रूप में बताया गया है क्योंकि वह और उसके कार्य गंदी बस्ती के स्कूली बच्चों के लिए किसी काम के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What tempts them and why? उन्हें किस चीज से प्रलोभन मिलता है और क्यों? And the answer is the wonderful things of the world like the sun, love and all the beautiful things tempt the slum children to steal them. विश्व की आश्चर्यजनक चीजें जैसे सूर्य, प्यार और अन्य सुंदर चीजें उन गंदी बस्ती के बच्चों को प्रलोभित करती हैं। Explain from fog to endless night. कोहरे से अनंत अंधेरी रात तक, इसकी व्याख्या कीजिए। आंसर है From fog to endless night means from ignorance to darkness, like that of an endless night. कोहरे से अनंत अंधेरी रात तक का तात्पर्य है अज्ञानता से अंधेरी रात तक जैसे अनंत रात तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू दे लिव इन देयर होल्स? वो अपनी मांद में कैसे रहते हैं? एंड द आंसर इज दे लिव लाइक रैट्स इन देयर होल्स. वो चूहों की तरह अपनी मांद में रहते हैं. फॉग एंड डार्कनेस डोमिनेट देयर लाइव्स. और कोहरा और अंधेरा उनके जीवन पर अपना वर्चस्व बना चुका है. What blot their maps? उनके नक्शों को किसने कलंकित किया है? And the answer is their maps are blotted by the civilized world. It is the world of the rich and great. उनके नक्शे को इस विश्व के सभ्य लोगों ने कलंकित किया है. यह विश्व अमीरों और बड़े लोगों का है. Next question है Who was Shakespeare? शेक्सपियर कौन था? And the answer is Shakespeare was a great poet, dramatist and novelist. शेक्सपियर एक महान कवि, नाट्यकार और उपन्यासकार था. Find the words from the stanza. पद्यांश में से इन शब्दों के अर्थ ढूंढ कर लिखिए. फर्स्ट है secretly, इसका आंसर है slyly. नेक्स्ट इज waste material, इसका आंसर है slag. और pieces, bits.
अब इस स्टेंजा को देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक शासक, अध्यापक, निरीक्षक और आगंतुक, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. यह मानचित्र इनके संसार मानचित्र की खिड़की नहीं बन जाते और ये खिड़कियां जो उनके जीवन पर कब्र या तहखाने की खिड़कियों की तरह बंद हैं। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक उन्हें तोड़कर खोल नहीं दिया जाता और जब तक वे कस्बे को तोड़ नहीं देते। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, और बच्चों को हरे भरे खेत नहीं दिखा देते या विश्व को सुनहरी रेत पर नीली समुद्री लहरों तक विस्तार नहीं कर देते। रन azure on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open, और पुस्तकों पर उनकी जिह्वाओं को सपाट नहीं दौड़ा देते, मतलब उन्हें किताबें नहीं पढ़ा देते और उनकी ये जीभ सफेद और हरे पत्तों तक नहीं पहुंचा देते ताकि ज्ञान के द्वार उनके लिए खुल सकें। हिस्ट्री theirs whose language is the sun, इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा में सूर्य का प्रकाश और शक्ति होती है, मतलब आत्मविश्वास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who does the poet appeal to? कवि किनका आह्वान करता है? And the answer is, the poet appeals to the governor, teacher, inspector and visitor. कवि गवर्नर, शिक्षक, निरीक्षक और आगंतुकों का आवाहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How can this map become their window? यह नक्शा उनका नक्शा कैसे बन सकता है? And the answer is, this map of the world is formed by the rich. दुनिया का ये नक्शा अमीरों का है। It must also be opened to aid the poor and unfortunate slum children. इसे गरीब और गंदी बस्तियों के दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए भी खोला जाना चाहिए ताकि वे इसमें जुड़ सकें। Then after it will become their window. तभी ये उस नक्शे में उनका नक्शा शामिल होगा। Explain till they break the town. व्याख्या कीजिए शहर के सारे बंधनों को तोड़ने तक। And the answer is, till they come out of the dirty surroundings and slums of the town into the open. जब तक वे गंदे वातावरण और कस्बे से बाहर खुली हवा में नहीं आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएट्स हिस्ट्री? इतिहास कौन बनाता है? एंड द आंसर इज, दोज हुज लैंग्वेज हैज द वार्मथ एंड पावर ऑफ द सन कैन क्रिएट द हिस्ट्री। वो लोग जिनके भाषा में सूर्य की ऊष्मा या गर्मी और शक्ति हो, वे इतिहास बनाते। What will happen if the children come out of the bonds that bind them? क्या होगा जब बच्चे उन बंधनों से बाहर आ जाएंगे जिनसे वे बंधे हैं? And the answer is, if they come out of the bond that bind them, then they can come out of the dirty surroundings and slums of the town into the open. जब वे उन बंधनों को तोड़कर बाहर आ जाएंगे जिनसे वे बंधे हैं, तो वे अपने गंदे वातावरण और शहर की गंदी बस्तियों से बाहर निकलकर खुले क्षेत्र में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है। टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर्स द फॉलोइंग। नीचे दिए गए उत्तरों में से जो सबसे सही हो उस पर निशान लगाएं। द टॉल गर्ल विद हर हेड वेड डाउन मीन्स द गर्ल, लंबी सी लड़की जिसका सिर वजन से झुका हुआ है, इसका अर्थ है कि वह लड़की। आंसर है इज इल एंड एग्जॉस्टेड, बीमार है और थकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज मीन द बॉय इज, वह लड़का जो कागज जैसा दिखाई दे रहा है और जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, वह लड़का है। आंसर इज थिन, हंग्री एंड वीक, वह दुबला पतला सा है, भूखा है और कमजोर है। Next, the stunted, unlucky hair of twisted bones means the boy, वह लड़का जिसकी दुबला पतला सा है और जिसके जो उत्तराधिकारी है
और जिसकी मुड़ी हुई हड्डियां हैं, तो वो लड़का है। हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, कि उसमें उसके माता पिता से कोई कमजोरी या कोई अक्षमता आई है। नेक्स्ट, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें एक सपने को जीती हैं। अ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स, एक गिलहरी का खेल और एक पेड़ के अंदर बने हुए कोटर में, इसका अर्थ क्या हुआ? द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, कि वह भविष्य की आशाओं से भरपूर है। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स, दिस मीन्स दे, इन बच्चों के चेहरों की तुलना जड़ों के बिना खरपतवार से की गई है। इसका अर्थ है आर इनसिक्योर, कि वो असुरक्षित हैं। What do you think is the color of sour cream? आपके विचार में मटमैली क्रीम का रंग कैसा होता है? And why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? कवि ने इस कथन का प्रयोग कक्षा की दीवारों के लिए क्यों किया है? And the answer is, in my thought, the color of sour cream is off-white. मेरे विचार से मटमैली क्रीम का रंग मटमैला सफेद रंग है। In my opinion, the poet has used this expression to describe the classroom walls because he wants to contrast the classroom walls with the world of the slum children. मेरे विचार से कवि ने इस भाव को कक्षा की दीवार के लिए व्यक्त किया है क्योंकि कवि ने यहाँ पर कक्ष की दीवार और दुनिया की गंदी बस्तियों के बच्चों के बीच में विरोधाभास को व्यक्त किया है। Actually, these unpleasant walls symbolize the poetic conditions of the lives of these children. दरअसल में ये सुहावनी जो बुरी सी दीवारें हैं, इन गंदी बस्तियों के बच्चों में रहने के दीनहीन दशा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, buildings with domes, world maps, and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? उस कक्षा की दीवारें शेक्सपियर, गुंबदों वाले भवन, संसार के नक्शों और सुंदर घाटियों के चित्रों से सुसज्जित हैं। ये इन बच्चों के संसार से विरोधाभास कैसे प्रस्तुत करती? And the answer is, these pictures beautifully contrast with the world of these children. These pictures means beauty, progress, prosperity, etc. ये चित्र बहुत ही सुंदर तरीके से इन बच्चों के संसार के विरोधाभास को व्यक्त करते हैं क्योंकि इन चित्रों का अर्थ है सुंदरता, उन्नति, समृद्धि। But these slum children have no meaning and no purpose for them because they live in extreme poverty. परंतु इन गंदी बस्तियों के बच्चों से इन चित्रों का कोई मेल नहीं है, कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीबी में जीते हैं। पॉवर्टी यानी गरीबी। What does the poet want for the children of the slums? कवि गंदी बस्ती के बच्चों के लिए क्या चाहता है? How can their lives be made to change? उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है? And the answer is, they can change their lives if they are shown green fields and their world is made to run azure on gold sun. इन बच्चों के जीवन को बदल सकते हैं यदि इन्हें हरे भरे खेत दिखाए जाएं और उनके विश्व को सुनहरी रेत पर नीले आकाश की तरह बनाया जाए। The dirty surroundings must be removed, then only they will land in a world full of progress and prosperity. उनके गंदे वातावरण को वहां से हटा दें, तभी वो उन्नति और समृद्धि के संसार में रह पाएंगे। Then there will be no social injustice, और तब वहां पर सामाजिक अन्याय भी नहीं होगा। तो आई होप कि जल्दी ही द रैट ट्रैप लेसन का वीडियो भी आपके सामने आने वाला है और बाकी लेसन्स के भी क्वेश्चन बैंक एक एक करके आएंगे। टिल देन, स्टडी हार्ड, विश यू गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।